Welcome back to the TIB podcast, your go to space for real conversations that matter. From personal growth and wellness to parenting, relationships, finances, and everything in between. Today, we are tackling the real life challenges parents face daily. Managing those explosive moments when kids are angry or frustrated, navigating screen time battles, understanding what's actually going on in your child's mind, and meeting their emotional needs in a fast packed world. I'm thrilled to be joined by a very special guest, Miss Anju Arora, a parenting coach and educationist who has dedicated her career to helping parents raise emotionally strong, responsible, and genuinely happy children. Her approach combines educational expertise with practical coaching to help parents connect with their children in more meaningful ways. Whether you are a single parent or working parent stretched thin, or simply looking for fresh tools to navigate the highs and lows of parenting, this episode is packed with insights you can start using immediately. You will walk away with practical strategies, mindset shifts, and real world advice on everything from toddler tantrums to teenage shutdowns. So settle in and join us as we explore the art and science of conscious parenting with Anju Arora. Let's dive in. Anjuji, welcome to the show, first of all. I would like to begin by learning about your personal journey. You have worn many hats as an educationist and now a parenting coach. So, to start off, could you please take us through your journey first? And how has your background in education influenced your approach to parenting? Well, good question to start with, Payal. I started my journey as an educator 28 years back. Mhm. And when I started my journey, very honestly, I never wanted to be a teacher. I chose to be a teacher because the place where I came after marriage had not many opportunities. So sometimes, you have to make the opportunities available to yourself, and you cannot keep crying all the day. Then one fine day, talking to my husband, he said, why don't you, well, my concern was that where are my children going to study, Ponta being such a small place where we are. Mhm. And then one day he just said that you are such an educated person, whatever the school will not be able to do, you can do for your child. That one little thought was the beginning of the shift in my mind. And the day my elder daughter joined the school, I also joined another school as a teacher. Okay. And once into a school, within 2, 3 months, I realized perhaps this was my calling. And I found so much happiness connecting with children, teaching them, working with them, and watching them learn and grow. I gave myself mind, body, and heart to teaching. And once you give yourself something fully, completely, wholeheartedly into something, I believe magic starts happening. Soon after being a teacher for 6, 7 years, I got opportunity into administration, and then Okay. I worked as vice principal for a year. Then I got another opportunity where I was to be founder principal of an upcoming school, CBSE school in my own place, Pantasai. Then I took that opportunity, and I had been the founder principal of K-12 CBSE school for 16 years. And currently, I'm working as director academics in another CBSE K-12 school in my place. Once went into administration, and when my journey started as a founder principal of the school, being a teacher and being an administrator, there are two different roles. And as principal, when I was looking into the performance of the entire children, the entire school, what we are offering to children in the through the curriculum and all, I noticed one point very clearly, and that was that some children were always able to do very good, and some children always struggle. I tried to find out the reasons, and slowly and gradually, when I moved back and I connected with the parents and I looked more into the family backgrounds, family culture, family educational histories, family's generational history of education, I noticed one thing, that the parents, those who were willing to learn and evolve and grow with their own children, and ready to accept the alternative approaches and listening to you as the teacher, as a principal of their children, those children were performing better. Okay. It was not because the parents were teaching them something, doing extra on academics front. It was just that those parents were concerned about the consistency at home, consistent ritual behaviors, values patterns, these things.
And children coming from those homes मतलब being nurtured under those parents, they were doing better. This was something, this was an insight for me, that this is something Okay. really very, very important. Then I started taking it as more proactively with the parents. And rather than ki, if there is some problem identified, then we are calling the parents. We initiated an entire system of parent education in the school. When the children took the admission, the very first week or maybe in the very first fortnight, we will have parent orientation session where we will share what works with children, what age group, what you need to do, what we Mm-hmm. need to do, expectation settings, and certain small things. And the first and the foremost among that being the role model at home, what you're Right. expecting from your child. If you are not doing that, children are never going to learn that. This started giving me the result, and this I started doing, I believe, after 7 8 years of being into administration. Means I am doing it for the last almost 14 15 years now with the Mm-hmm. parents in the school system. And then when I noticed this, and then I realized I am reaching only out to the parents of my own school. Why can't I reach out to more parents? And then during Corona, this digital advancement and everybody going on to Zoom, and we also learned a lot at that time. That was an opportunity again for me to reach out to parents on the of the larger world. And I started reaching out to the parents. I have my own Insta page. I have my own FB page. I have my own YouTube channel. I write blogs on Blogger. So through these digital means, I started reaching out, and I again started noticing, my observation is that a parent who is guided, who is Mm-hmm. guided more at the early stages, values are settled properly, those children are doing better. So my being an educator gave me very practical evidences of parents involvement. And not Mm. only to increase the performance, academic performance is secondary to me. Right behavior, right values, right patterns, Right. consistency, and moreover the parents expectations from their children also started being realistic. Because Mm-hmm. हमारा मेन प्रॉब्लम ये कि हमारी जो अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत अनरियलिस्टिक है, बहुत अनरियलिस्टिक है. I तो यहाँ agree. से मुझे बीइंग इन एजुकेशन, मुझे समझ में आया कि एजुकेशन में जो एक बड़ी चीज हम छोड़ रहे हैं, वो हम पेरेंट को नहीं गाइड कर रहे हैं, हम पेरेंट को एजुकेट नहीं कर रहे हैं. और वहां से मुझे पेरेंटिंग कोच होने का जो मुझे नजर आने लगा कि यहाँ एक स्कोप है हम पेरेंट्स तक पहुंचे. और वहां ऐसे मैंने ये वाला अपने लिए एक और जरिया निकाला Right. पेरेंट्स तक पहुंचने का, कि मैं और उनको गाइड कर पाऊँ. तो दिस इज हाउ माय That's जर्नी ऑफ that's बीइंग indeed पेरेंट a कोच स्टार्टेड. wonderful that's indeed a wonderful journey. So my next question was this only, and you focus on creating school curriculum and that support holistic child development Yes, basically, and you also coach parents who I mean for their vital role at home. yeah. So how do you see the balance between what schools provide and what parents need to build at home? As I earlier told you, right, how I became a parenting coach, because I could see the need to educate parents. And the same, see, schools are doing a lot of things. Why schools are doing a lot of things? One thing, that the school's job is to educate children. Yes. But at the same time, what we teach in the school, the values, the systems. Like, for example, if I take the example of social science, I have been a teacher of English, social science, economics. And Okay. social Yes. science being my subject, when we are talking to children about so many issues on the societal level as well. So once teaching my children traffic rules and importance of following all the traffic norms and all that. We were that day we talked about putting on the seat belt and all that. Mm-hmm. And my boy, that little student in my class, he might have gone to home, and then when he was traveling by car with his father, he put on the belt on the front seat, Oh, okay. sitting beside the driver. Mm-hmm. And the driver, his father, was not putting on the belt. And उसने पूछा कि Oh, ये तो बेल्ट तो लगानी होती है, हमारी that's ये हमारी मैम interesting. ने तो सिखाया है कि आपको बेल्ट लगानी होती है, and why are you not putting on the belt? Mm-hmm. This is violation of the traffic rules, and this is for your safety and all that, and that. That Now, child kids are came teaching back. parents. Yeah, and the child came back, and उसके पापा ने उसको जो बोला, he said that, Mm-hmm. अच्छा अब तुम्हारी मैडम हमें भी पढ़ाएगी. Okay. And that when the child came back to school, when he shared this incident with me, therein again I saw what we are teaching to the children in the Mm-hmm. school. If the things are not, especially the social norms, rules, regulations, Mm-hmm. being civilized, if that all is not being followed by parents at home, Parents. children go into confusion.
Mm-hmm. what we are taught and what we see in the society. So that was again, there are many incidences, many case studies of this kind, which told me what we teach in the school. We create curriculum for holistic development. We create curriculum wherein we are focusing on their physical development, their social development, their mental intellectual development, their emotional development. We are working on so many fronts, but this all has to be practiced in the real life, Yes, in the real agree. life, right? A Mm-hmm. child who has learned to identify his emotions and able to regulate and able to express regulated expression of his emotion, if the child doesn't see that at home happening, and at home everybody's shouting and fighting like cats and dogs, the child again is in confusion. Yes. So that told me we have to educate parents on this, that what we are creating, just the balance you have to maintain. Please be on the same page with the school, so that your children are Right, observing right. what we teach in the Mm-hmm. classroom is actually practiced in the life. And remember what I tell parents: see, we can do 100 things, but if in the practical life lab the children are not able to apply, there is no Mm-hmm. meaning of any education, any numbers. So Yes. my expectation from parents is just that, please focus. Academics we will focus, you just focus on the behavior patterns values. आप खुद सोचो पायल जी, डू यू थिंक कि एक बच्चा जिसको आदत है अपना काम तरीके से करने की, सही Mm-hmm. टाइम पे डिसिप्लिन से प्रॉपर वे में करने की, आपको क्या लगता है वो बच्चा अपनी पढ़ाई नहीं संभाल लेगा? Yes, Any child definitely. who is not able to perform academically well Mm-hmm. as per the parents expectation, रीजन कुछ और है। रीजन उनके उनके घरों में एक कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं है, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन नहीं है, पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं है। पढ़ने का टाइम डिपेंड करता है, हम पार्टी से आ जाएंगे होमवर्क कर लेंगे, आज हम पार्टी से आए कल हम स्कूल नहीं जाएंगे, एक नोट डाल Mm-hmm. देंगे। मिसिंग कुछ और है जो हमें दिखता है इन द फॉर्म ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आप वो सब सेटल कर दो, तो आपका बच्चा अपने आप सब तरफ अच्छा करने लग जाएगा। तो यहाँ पे हम जो सिखा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं एज स्कूल, अपने स्कूल की तो हम गारंटी ले सकते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, राइट? Yes. अगर आप अपने घरों में उन चीजों को साथ में मिलके लगाना शुरू कर दो, अप्लाई करना शुरू कर दो, यू Mm-hmm. कैन सी योर चाइल्ड डेवलपिंग इनटू अ होलिस्टिक, मींस फुल्ली रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड who is happy and confident and knows what he has to do or they have to do. So, do you think this is the most overlooked parenting skill? If you talk about, like you're saying, that kids are learning by seeing their parents, and they are the they ones who are are creating they are learning, hurdles. yes. And this is, I say, my first recommendation, my first request, my first advice to parents is always that please model whatever you expect from Yes. your children. अगर आप खुद वो मॉडल नहीं कर रहे हैं, वो वैल्यू जो आप सिखाना चाहते हैं। एंड बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है पायल जी, हम कहते हैं हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप झूठ मत बोलो, बड़ा कॉमन, और ये Mm-hmm. बड़ा कॉमन एंड वैलिड एक्सपेक्टेशन है। हम एक बच्चे से झूठ की उम्मीद बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन बच्चा सीख कहाँ रहा है झूठ? बच्चा Yes, I घर agree. में ही I सीख रहा है। agree. जब वो फोन आता है और उधर से पापा कह देते हैं, फोन उठा के बोल दो पापा आज घर पर नहीं है, पापा Oh, बाहर that's मीटिंग में good. है, एंड देन Mm-hmm. ये तो है ही है। इसके अलावा देयर आर थिंग्स दैट चिल्ड्रन आर वाचिंग अगेन। Mm-hmm. तो वट एवर यू विश योर चिल्ड्रन टू डू, एंड देन पेरेंट्स ये कहते हैं ये तो कोई बात नहीं हुई। भाई हम ये हरकत हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम सच बोल पाए। हमें Mm-hmm. कभी कभी अपने प्रोफेशनल सेटअप में बोलना पड़ जाता है, हमारे से नहीं हो रहा होता है या हमारे को उसका काम नहीं पूरा, वी हैव टू। बट देन आपका बच्चा तो रोल बच्चे भी मॉडल वही करेगा। सीख रहे हैं, एंड बिलीव राइट? मी 12 साल तक तो पक्का बच्चा सीख Mm-hmm. ही इमिटेशन से रहा है, वो अपने Mm-hmm. एनवायरमेंट से सीख रहा है। और आप उसका प्राइमरी एनवायरमेंट क्रिएट करते हो, घर और स्कूल। इनिशियली यही आपका एनवायरमेंट है। 3 साल के बाद बच्चा आ रहा है, स्कूल में आ रहा है, वो 3 साल तक कितना हमें लगता है बच्चा स्कूल जाएगा तब सीखेगा। बच्चा तो फ्रॉम द डे वन सीखना शुरू कर चुका है। और जब तक आप भेज रहे हो 3 साल के बच्चे को, जिसको आपने Mm-hmm. कोई बाउंड्री नहीं सिखाई है बॉडी की, सामान उठाने की, चीज देखने की, उससे आप उम्मीद कर रहे हो स्कूल जाती 4 दिन में सीख जाएगा, 10 दिन में सीख जाएगा? Agree. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे आपने बोला बच्चे पेरेंट्स से ही सीख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, Mm-hmm. ये बड़ा कॉमन है बीइंग इन द स्कूल। आप देखेंगे छोटा सा बच्चा भी ना कोई कोई के बच्चे आपको दिख जाएंगे जो बड़ी मोटी सी गाली दे रहे होंगे। तो Mm-hmm. ये कहाँ से दे रहा है? भाई हमारा तो कोई करिकुलम Parents. है नहीं, ना हम बोल रहे हैं ना Yes, कोई। yes. तो जब हम पेरेंट को बुलाते हैं ना, जब बात करते हैं, तो पहले तो इनिशियली एवरीबडी विल गोज इन डिनायल मोड, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ Mm-hmm. ये हमारे भाई बोल देते हैं या हमारे पापा बोल देते हैं या हमारे नेबरहुड में अंकल है वो बोल देते हैं। Mm-hmm. तो बच्चा तो सीख रहा है ना। तो ये उसका प्राइमरी एनवायरमेंट जो है,
आप केयर टेकर्स, एडल्ट्स एट होम, वो कोई भी है, सिर्फ मम्मी पापा नहीं, आपके हम्म। घर परिवार में अगर जॉइंट फैमिली है, तो जो भी घर में है वो बच्चे के लिए सिग्निफिकेंट एडल्ट पेरेंट फिगर है, तो राइट, आई एग्री। बच्चा तो सीख। तो ये एक राइट। बहुत बड़ी मिसिंग चीज है, जो हम उम्मीद करते हैं वो हम खुद नहीं कर रहे होते। और फिर वही बच्चे स्कूल में दूसरों को सिखाते हैं। बच्चे सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, फिर हमें बुरा लगता है, इतना छोटा सा यस। बच्चा ये ऐसे कैसे बोल रहा है, तो उस बच्चे को तो हम्म। मतलब ही नहीं पता ना, वो जो बड़ी गाली भी आई कोई दे रहा एग्री, है, आई एग्री। उसको तो मतलब भी नहीं पता है, वो तो उसने तो सिर्फ एक बस वर्ड सीखा और कॉपी कर बोल रहा है, दिया। वर्ड कॉपी कर रहा है, आपकी इतनी चीजें वो कॉपी करता है, आपके वर्ड्स भी कॉपी कर लेता आई है ये कंप्लीटली एग्री। इशू एक है। So, in your experience, what mindset shift do you parents need to make in a high pressured world, like in order to raise balanced kids? सी देखो, पेरेंट्स का अगेन, पेरेंट्स का जो आज फोकस है ना, दैट फोकस इज टोटली ऑन द परफॉर्मेंस। हर पेरेंट Yes. को अपना बच्चा 90+% पे एक्सेप्ट है, तो दिस इज परफॉर्मेंस पेरेंटिंग। आपको Mm-hmm. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो नंबर आ कैसे रहे हैं, Mm-hmm. नंबर मेहनत से आ रहे हैं, पढ़ाई से आ रहे हैं, एफर्ट से आ रहे हैं, वेरी गुड, बट अगर नंबर कहीं चीटिंग से भी आ रहे हैं, तो क्या सिर्फ नंबर ही पैरामीटर है? तो ये जो पेरेंट्स परफॉर्मेंस पेरेंटिंग पे है ना, कि बच्चे को आप उसकी वर्थ, उसका वैल्यू, उसका एवरीथिंग यू Mm-hmm. आर जजिंग अबाउट अ चाइल्ड थ्रू देयर मार्क्स, दैट इज वन थिंग दैट पेरेंट्स हैव टू मेक शिफ्ट। They have to focus more over the being present as parent, making connection with children, genuine connection with children, and then they have to focus character more over the performance. If Yes. character settles well, character means all your habits, values, your patterns, Mm-hmm. everyday interactions, everything settles well, performance will take care of itself. And again, since I come from a school background, I have examples, means authentic examples that we have gone through, we have faced, we have handled. There was a child in class 4, और हमारे टेस्ट चल रहे थे, असेसमेंट्स हो रहे थे, एंड उस बच्चे के ना हाथ में यहाँ पर 4-6 स्पेलिंग्स लिखी Oh, हुई थी, 4-6 yes. स्पेलिंग्स लिखी हुई थी, और वो पेन से लिखी हुई थी, Mm-hmm. पेन से लिखी हुई थी, और हमारे पास बच्चे 4th क्लास तक जो है वो पेंसिल से लिखते हैं, Pencil से। 5th क्लास में भी सेकंड टर्म में हमारे पेन शुरू होते हैं। अब वो लिखी हुई थी, अब हमने देखा उसको, और डेफिनेटली बच्चे को तो हम गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे ने नहीं लिखा, वो Mm-hmm. हमको नजर आ रहा है। बच्चे का Okay. उस बच्चे का स्पेलिंग में थोड़े पॉइंट्स पर वीक होते हैं Mm-hmm. बच्चे, कई बार टाइम लगता है चीजों को पकड़ने में, ऐसा नहीं कि वो बच्चा कर नहीं लेगा, हमें 4 बार और कराना पड़ेगा, आपको और हमको मिलके Mm-hmm. पेरेंट। अब वो पेरेंट को लगा, जब पूरा तैयारी कराते हुए, रिवीजन कराते हुए 4 स्पेलिंग्स नहीं Mm-hmm. आते हैं, तो उन्होंने वो स्पेलिंग तो लिख यहाँ दिया, लिख क्योंकि दिया। दैट Oh. दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का जो स्पेलिंग है, 4-6 वर्ड्स, आपका Mm-hmm. ट्रांसपिरेशन है, इवेपोरेशन है, क्लोरोफिल है, आपने वो आपने लिख दिया बच्चे का, कि भाई अगर ये स्पेलिंग लिखोगे तो यहाँ से चेक कर लेना। अब हमने जब नोटिस में आया, जो इन्विजिलेटर थी, तो उन्होंने पहले तो उसका फोटो लिया, क्योंकि आपको एविडेंस रखना है, Uh, फिर जाके yes. बच्चे का हाथ धुलवा दिया, और फिर जब Mm-hmm. पेरेंट को बुलाया, क्योंकि बच्चा जब घर गया उसके हाथ पे था नहीं, और Mm-hmm. पेरेंट ने उसको पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं लिखा, लिखा भी होगा तो इसी ने लिखा होगा फिर। देन क्योंकि अब डील करते हुए हम लोगों को भी, Mm-hmm. हमारे को ये पता है विदाउट एविडेंस आप कोई बात नहीं कर सकते हैं, आप Agree. एलिगेट नहीं करते हैं, यू टॉक विद Mm-hmm. एविडेंसेस। तो हमने वो फोटो फिर उनको दिखा दिया। Mm-hmm. अब वो पेन से लिखा हुआ है, बच्चा तो लिखता ही पेंसिल से है, और राइटिंग भी बच्चे की राइटिंग से नहीं मैच कर रही। हाँ, राइटिंग तो मैच हो जाएगी। हाँ, अब उन्होंने एक्सेप्ट एक्सप्लिसिटली तो नहीं किया, बट अब उसके हम्म। पास कोई आपके पास चारा नहीं था कि वो बात तो सही है। अब ये क्या है, आपको एक 4th क्लास के बच्चे के नंबर ऑन पेपर बहुत मैटर कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप ये नहीं देख रहे हो कि आपने उसको चीटिंग करना खुद सिखा दिया, सिखा दिया। आई खुद एग्री। सिखा दिया। यस, फाइन, तो यस। पेरेंट का माइंड शिफ्ट जो चाहिए ना, हम्म। व्हाट आई रिक्वेस्ट, व्हाट आई सजेस्ट, व्हाट आई रेकमेंड, प्लीज गो फ्रॉम परफॉर्मेंस पेरेंटिंग टू presence parenting. Focus more on यस। character building, competition, comparisons, everything we will take care. But first settle the foundation, which is based on right values, right characters. Yes, that's interesting. So now, what are some of the key emotional needs of children that parents often overlook, according to you? Yeah, the first and the foremost emotional need. Parents, we as parents, हमें ना अगर कभी हम रुक कर देखें पायल जी, तो हमें ना जो पेरेंटिंग में हम अपने हिंदी में अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं पालन पोषण। Yes. हमारा जो शब्द आता है वो पालन पोषण Mm-hmm. है। तो पालन तो वही है कि हमें बच्चे के लिए प्रोवाइडर होना है, सारा सामान उसके लिए, खाने का, पीने का, पढ़ाई लिखाई, Mm-hmm. कपड़े लत्ते, जो उसकी शारीरिक फिजिकल नीड्स हैं, कंफर्ट की नीड्स हैं, वो प्रोवाइड कराना। कंफर्ट में मैं फिर कभी आगे अगर टाइम लगा इसी में तो बात करूंगी, तो हमें कितना प्रोवाइड करना है वो तो पालन है, मुझे करना है। Yes. पोषण क्या है? पोषण इज माई इमोशनल प्रेजेंस इन माई चाइल्ड्स लाइफ। Mm-hmm. तो हम पालन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं,
हम सब कुछ प्रोवाइड हम्म, कर रहे हैं, हम प्रोवाइडर के रोल में हो गए, पर नर्चरर के रोल में हम नहीं है। तो पेरेंट को जो सबसे पहला इमोशनल नीड पूरा करना है ना, कि बच्चे की फिजिकल नीड पूरा करने के अलावा आप बच्चे की इमोशनल नीड्स को भी देखो। और बच्चों का द हम्म, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इमोशनल नीड है, उनको कोई सुने, टू बी लिसनिंग टू देम, टू बी हियरिंग देम हम्म, विदाउट जजमेंट। एक 6 साल का, 8 साल का, 12 साल का बच्चा, हम हम सिर्फ शब्दों में बात करके ये समझ लेते हैं कि उस बच्चे का कॉग्निशन लेवल हमारे लेवल पे होगा। बच्चे की अभी, अब बच्चे की वोकैबुलरी बन रही है, बच्चे का तो अभी हम्म, समझना, कॉग्निशन डेवलप होना, कंपैरिजन करना, चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करना, वो सब अभी बन रहा है। और हमने एक सेंटेंस बोला और हम समझते हैं हमारे लेवल पे वो समझ लिया और काम करते हैं। समझ लायक। और दूसरा, जब बच्चा अपने बारे में कुछ बताना करता है शुरू, हमारा जो अप्रोच है ना, हम हमेशा करेक्शन पे चले जाते हैं। उसने बताना शुरू बाद में किया और हम करेक्शन पे पहले चले जाते हैं। तो करेक्शन पे मत जाइए, पहले उसे सुन लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसने जो किया वो क्यों किया, हम्म, उसका वो क्या नीड था, वो उससे क्यों हुआ। उसने किया नहीं है, उससे हुआ है। और किया हम तब मानते हैं जब आपने किसी चीज के ऊपर डिस्कशन करके कोई वैल्यू सेटल कर लिया है। उसके बाद अगर बच्चा कर रहा है तो किया है, उससे पहले वो हुआ है, उसे पता ही नहीं है ना, दैट इज अनमाइंडफुली हैपनिंग। तो वन इज दैट द पेरेंट, दे मस्ट listen to their children, active listening without any interruption, without going into the mode of correcting and all that, guiding always. Second is to be, बच्चों को रिकॉग्नाइज करिए, आप उनको हर वक्त उनके जो भी उनसे काम ठीक नहीं हो रहे आपके हिसाब से, राइट, आप उनको करेक्ट कर रहे हैं, इतना सा भी उनसे कुछ छूट रहा, आप दिन में कम से कम 25 बार बच्चे करेक्ट करते हैं, शायद मैंने हम्म, 25 भी कम बोला, आप ज्यादा बार करेक्ट कर रहे हैं, हर छोटी चीज में आप करेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बच्चा उम्र के किस पड़ाव पे क्या कर पाए। एक 3 साल के बच्चे से, 5 साल के बच्चे से हम क्लासरूम में एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बच्चा 4 घंटे का, अगर उसका स्कूल का टाइम है, नर्सरी क्लास, जूनियर केजी, सीनियर केजी क्लास, तो 4 घंटा बच्चा बंद के बैठ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं हम्म, है। एक छोटा बच्चा 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ नहीं सकता। बैठ पाएगा। तो अगर वो नहीं बैठ रहा, तो आपको जब पता होगा तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सेकंड, चलिए, आप बता रहे हैं, समझ रहे हैं, के अलावा अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, जो नेचुरली हम दिन में बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, उसको तो हम कभी ना तो एक्नॉलेज करते हैं, यस। ना हम उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो my requirement from the parents is that कि when you are so quick to correct the children, please be double quick to notice when they have done something right and give a compliment. Oh, Acknowledge I them, admire that. right, right. I love Yes. how you are so responsible. I noticed that you were being so helpful to your dadaji. I हम्म, noticed that you were being so kind with your brother. जो भी उसने अच्छा किया, उसको immediate हम्म, acknowledge करो। एंड देन बच्चों को उनके लेवल का ऑटोनॉमी जरूर दो। हम्म, अच्छा बहुत कंट्रोल फील करता है, एनीबडी, आप पेरेंट्स से, मतलब आप खुद को देखिए पायल जी, आप पेरेंट्स से हम बात करें, आपको सारा दिन सुबह से होकर कोई वो देता रहे, कमांड देता रहे, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हाउ फ्रस्ट्रेटेड डू यू फील। अब yes. हमें लगता है कि 3 साल के बच्चे का भी कोई ऑटोनॉमी का नीड है, बिल्कुल है। हम्म, एंड मेरे पास इसका इतना इतना ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है। आई हैव 2 डॉटर्स। हम्म, तो आज मेरी बेटियां अब तो दोनों बड़ी हैं और वो प्रोफेशनल है, वर्किंग एंड ऑल। छोटी वाली बच्ची जब मेरी वो जूनियर केजी में थी, एलकेजी, लोअर केजी, जूनियर केजी में थी, तो जैसे उसने स्कूल से आना, तो भाई बेटा आप खा लो, अब पढ़ेंगे। तो संडे था, एक दिन ऐसे ही मैंने उसको सवेरे बोला होगा, बेटा आप पहले हम ये करेंगे फिर ये करेंगे, उसने ना लिटरली रोना शुरू कर दिया फ्रस्ट्रेशन में। oh, ऐसा क्या हुआ? कहते मुझे एक बात ये बताइए आप, कि आप ही मुझे सारा दिन बताती रहोगी कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, oh. अब मैं क्या करूं, आप ही बताती रहोगी, मैं कब डिसाइड करूंगा, मैं कब करूंगा। अरे बाप रे, दैट वाज आई ओपनिंग फॉर मी। फिर हम्म, मैंने खुद को समझा और मैंने उसको समझाया। मैं कहा सी वन थिंग, मेरे को उसका, तब मैं यंग मॉम थी, मैं 32-33 साल की तब थी, 33-34। तो मेरे को उसका जो समझ में आया, मैंने उस लॉजिक से उससे बात की। मैं कहा एक मिनट बेटा, एक बात बताना कि मुग्धा, मम्मा को दादी का, नानी का फोन आता है कि मुग्धा को खाना खिला दो, मुग्धा को तैयार कर दो, मुग्धा को स्कूल भेज दो। बोली नहीं। मैं कहा मम्मा को समझ में आ गया? बोली हाँ। मैं कहा जब आप बड़े हो जाएंगे ना और आपको ये पता हम्म, चल जाएगा कि आपको कौन सा काम कब करना है, फिर मम्मा आपको बिल्कुल नहीं बताएगी। और ये मैंने उसको यहाँ पे लॉजिक से कन्विंस कर हम्म, लिया। एंड देन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ऑनवर्ड्स मैंने अपने आप से बात की कि जो काम मेरा बच्चा रूटीन में खुद कर लेता है, मुझे क्यों बताना है सुबह उठ के।
I नाउ agree. शी इज इन द हैबिट ऑफ गोइंग एंड ब्रशिंग हरसेल्फ, तो मुझे सवेरे उठ के Mm-hmm. तोते की तरह क्यों चालू हो जाना है? ब्रश करो, नहाने जाओ, दूध पी लो, Mm-hmm. ये तो उनके रूटीन का पार्ट है, कंसिस्टेंट। तो हमने अपना अप्रोच बदला और फिर अब हम देखते थे जो काम वो खुद कर रहे हैं हम उसके लिए रिवॉर्ड कर देते, वाओ तो Yes. हो गया ब्रश आपका, चलो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो हमने वो छोड़ा। तो ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब वो बच्चा 4 साल का था, राइट, कि ईच एंड एवरी चाइल्ड दे हैव द नीड फॉर द ऑटोनॉमी, अपने हिस्से का ऑटोनॉमी उनको चाहिए। और हम कई बार बहुत रिजिड हो जाते हैं, बच्चे को ड्रेस पहननी है ना, आप कह रहे हैं फ्रॉक पहन लो, वो कह रही है कि मैंने लोअर एंड टी शर्ट पहनना है, इसमें क्या Mm-hmm. लड़ाई? अनटिल एंड अनलेस कि भाई बाहर आपको डेंगू का मौसम नहीं है और आपको Yes. बच्चे को पहनाना है, वो उस पर फिर हम लॉजिक से बात करेंगे। Mm-hmm. लेकिन अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो उसको दे दीजिए ना ये चॉइस कि बेटा क्या पहनोगे। उसमें क्या है, उसको अब जो ट्रिवियल है उसका जब आप चॉइस देते चलते हैं ना, तो जो Mm-hmm. इम्पोर्टेंट है का आपके पास रह जाता है, क्योंकि बच्चा Yes, I कंट्रोल agree. फील नहीं करता है, कंट्रोल फील नहीं Mm-hmm. करता है। और जब आप आते हैं सीन में जो चीज इंपॉर्टेंट है, जहां Mm-hmm. उसके लिए उसने भी चॉइस बनाना सीखा नहीं है, या चॉइस कैसी भी बने उसका इम्पैक्ट फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ कुछ चॉइस ऐसी बने जिसका इम्पैक्ट फर्क पड़ता है, वहां आपको आना पड़ता है। तो आप अपने को वहां के लिए रखिए ना, क्या फर्क पड़ता है रोज उसके पिंक Yes. फ्रॉक निकाल के पहननी है, रोज पहनाइए पिंक, क्या फर्क पड़ रहा है? आई हैव That's सीन a इट दिस smart वे। strategy, I must say. स्मार्ट स्ट्रेटजी, Yes. आप उसको ऑटोनॉमी दीजिए, उसके हिस्से का दीजिए। और जो नेक्स्ट पेरेंट्स को देखना है कि जो पेरेंट ओवरलुक कर रहे हैं इमोशनल नीड में, प्लीज बिल्ड एंड नर्चर जॉयफुल कनेक्शंस विद योर चिल्ड्रन। खाना पीना देना कपड़े वो आपका जिम्मेदारी है, दैट इज योर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव चोजन टू बी अ पेरेंट, यू हैव चोजन टू बी अ पेरेंट, राइट। Yes. बट पालन के साथ पोषण, प्रोवाइडर के साथ नर्चरर, क्या आप नर्चरर हो रहे हैं? नो, एवरीथिंग प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, एवरी सिंगल महंगे से महंगा एक्सपेंसिव आइटम इन द मार्केट टू योर चाइल्ड, you are still a provider, you are not nurturer. Mm-hmm. Nurturing takes emotional presence with intention in the life of your child. That's Completely agree. how I That's a see the beautiful things. That's how concept. I see the things. Definitely. Yes. So, Anjali, now I will be talking about some real life situations Yeah. that parents commonly struggle with. When a child reacts with anger or frustration, what's the best way for a parent to respond in that particular moment? Yeah, that's real thing. जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा चैलेंज है कि Yes. बच्चे ने बदतमीजी से बात की। सी, Mhm. सबसे पहले आपको ये समझना है, इन एनी सिचुएशन व्हेन योर चाइल्ड इज reacting out of frustration, out of anger, you choose to be calm. You are not supposed to match their chaos Yes. because you are the adult in the situation. Mm-hmm. और आपको उनको कंट्रोल करके चुप कराना है, उनका मुंह बंद कराना है, ये आपकी चॉइसेस है एज पेरेंट। या आपने Mm-hmm. उनको वो लाइफ स्किल सिखाना है कि हमें अगर कोई भी बात पे हमारा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, विच इज Mm. फाइन, बट देन आवर वे ऑफ स्पीकिंग, आवर वे ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर हैज टू बी वेरी वेरी अग्रीएबल। ये कौन सिखाएगा वैल्यू? तो आप फर्म रहिए, काम रहिए, स्टे काम। पॉसिबल इतना इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है, लेकिन वो डिफिकल्ट तभी तक है जब तक आपने एज अ पेरेंट अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया है। तो Mm-hmm. मेरे लिए इस टेक्निक ने हमेशा काम किया है। टेक अ पॉज, रुकिए 1 मिनट, Yes. बिफोर यू गो इनटू दैट एंगर जोन, गोइंग इनटू दैट शाउटिंग जोन, गोइंग इनटू दैट येलिंग मोड, एक Mm-hmm. सेकंड को रुकिए और एक लंबा सांस लीजिए। दैट लंबा सांस, टेकिंग अ पॉज एंड डीप ब्रेथ, गिव्स यू दैट स्पेस वेयर यू आर एबल टू नाउ टीच योर चाइल्ड। तो आप काम रहिए, आपको जो बाउंड्री लगानी है वो लगा दीजिए। सपोज आपका बच्चा इस बात पे गुस्सा हुआ कि आपने बोला कि टीवी अब देखना बंद करेंगे, टाइम हो गया है, तो आपकी बाउंड्री यही है कि नो, सपोज नो टीवी आफ्टर 8 p.m. तो आप उसको कह सकते हैं ना, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड यू आर नॉट फीलिंग गुड व्हेन वी आर क्लोजिंग द प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, बट वी पुट ऑफ द टीवी एट 8 एंड दैट इज द रूल एंड दैट स्टेज इट, Mm-hmm. दैट स्टेज। आपको क्यों चिल्लाना है? कल भी मैंने तुम्हें बताया था, परसों भी बताया था, रोज बताती हूँ। मेरे ही घर में ऐसे नालायक बच्चे पैदा हुए हैं, आई वंडर। मुझे तो इन सब चीजों से इतनी उलझन होती है। आपने जो मैसेज देना था वो तो दिया ही नहीं, वो आप दे खुद देगा. भी क्योस में चले गए, वो भी क्योस में चला गया। आप बोलते हैं वो बोलता है, आप बोलते हैं वो बोलता है, और आर्ग्यूमेंट का साइकिल शुरू हो जाता है। चूज टू बी काम, Mm-hmm. टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ। लग रहा है नहीं हो पाएगा, 10 सेकंड के लिए जगह से ही चले जाओ, फिर Mm-hmm. वापस आ जाओ, एंड देन अगेन प्लेस द बाउंड्री with firmness. Being firm and being strict is different. You Mm-hmm. choose to be firm with compassion, with love. You are Mm-hmm. firm here. Here you know what you're doing. तो पेरेंट को सबसे पहले खुद को काम रहना है, एंड देन आप सिखा के ले जाएंगे।
इनफैक्ट जो भी हम नेगेटिव टॉक्स कर रहे हैं बच्चे के साथ, वो उसकी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है इन एनी केस। बिल्कुल। यस, हम यस। कितना कुछ बोल जाते हैं। देखिए लेबल देखिए, हम्म। तुम कभी सुनते ही नहीं हो। सुनते ही नहीं। मेरे ही घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है यस। नालायक। हम क्या बोल रहे हैं? हम उस बच्चे को सारे बच्चों से कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि तुम सबसे घटिया वाले बच्चे हो। आई एम सो सॉरी टू से दैट, राइट? राइट। तो आपने मैसेज तो ये दिया ना कि आई डू नॉट लाइक यू, अग्री। आई वांट टू बी द मदर ऑफ सम अदर चाइल्ड। तो हम कर क्या रहे हैं? यस। हम पूरी इमोशनल उसकी भी केमिस्ट्री पूरी खराब कर दे रहे हैं। तो हम्म। चूज टू बी काम, अपनी बाउंड्रीज लगाइए प्यार के साथ, उसकी राइट। फीलिंग को वैलिडेट करिए। आई अंडरस्टैंड द प्रोग्राम बीच में छूट रहा है, अपसेट होते हैं हम, कोई बात नहीं, हम्म। हम कल पूरा करेंगे, बट हमारा रूल है अगर 8 बजे बंद होना है, जो भी आपका टाइम है, तो इट हैज टू बी पुट ऑफ, दैट्स द रूल। एंड वी ऑल फॉलो द रूल्स, हम्म। फैमिली रूल्स, वी फॉलो। यस। इंडीड। बच्चे आपको चेक कर रहे होते हैं कि आप उनके गुस्से से गिव इन कर देंगे, हम्म। और आप कर देते हैं, तो फिर उनका वो तरीका चलता है। वो कितना हम भी खुद गुस्सा कर ले, आर्ग्यूमेंट में लग जाते हैं यस, इनफैक्ट। आपको गिव इन करना ही यस। नहीं, यू नीड नॉट गिव इन, हम्म। आप करना ही नहीं है। अंजू जी, ये बेस्ट डीप ब्रीदिंग आई थिंक प्रैक्टिस करेंगे पेरेंट्स मेरे लिए तो ये इसने सुनने के हमेशा काम बाद। किया है। हाँ, मैंने, क्योंकि मैं अब देखो, डेफिनेटली। आप स्कूल में भी जाते हैं, इतना बच्चा है, इतना हम्म। टीचर है, और बच्चे हैं तो बिहेवियर इश्यूज तो आएंगे ही ना। आपको यस। वही तो यस। उन्हें सिखा कर लेके जाना है। तो हम्म। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं खुद को काम एंड कूल करके जाऊं, कि हम्म। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इसको मैं अगर और दूसरे तरीके से बोलूं, थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बोलूं, तो इट गोज कि कोई भी परिस्थिति बाहर है, हम्म। मनोस्थिति मेरे कंट्रोल में है ना। यस। अग्री। How I think, how I react, how I respond, that is all in my control. What you do is not in my control. So I हम्म। choose to take charge of what is in my control. I do not choose to take control of what is in your control. So through my control, I can pass on my calm and peace and everything to you. तो हम्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेरेंट। वैसे डीप ब्रीदिंग हम बहुत बार यूज करते हैं, लाइक किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले, कुछ प्रेजेंटेशन देने से पहले, या बट ये एक बहुत बिल्कुल, अच्छा यूज है। वो आपने देखा था ना उसमें भी, पेरेंटिंग से पहले आई थिंक लोगों ने ये नहीं किया होगा, नहीं कुछ किया बच्चे होगा। को समझाने से पहले। नाउ दिस इज अ ग्रेट यूज ऑफ हाँ डीप जी। ब्रीदिंग, डेफिनेटली। So, Abhi, I will be talking about the favorite topic of the parents, screen time. Oh, So, screen time has become a major concern for almost every family these days. So, yeah. what's your approach to helping kids develop healthy digital habits? सी, मेरा बहुत सुंदर, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और ये Hmm. एक्चुअली हर घर का ट्रबल है आज की डेट में, हर घर का चैलेंज है। Hmm. मुझे लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना है पेरेंट्स से कि एक बच्चे के पास अगर 6 साल की उम्र में अपना पर्सनल डिवाइस आ जाता है, आता कैसे? आप ही Hmm. ला कर देते हैं, आप ही ला कर देते हैं। Agree. Again, when you talk about my approach, I will never say technology is bad, I'll never say Hmm. digital devices are bad. See, हम इस डिजिटल डिवाइस से ही एक दूसरे तक पहुंच रहे हैं। Yes. How we use the technology, how we use the screen time, that all depends on us. Any scientific invention or innovation के दोनों साइड है ना, तो हम उसका जो नेगेटिव साइड है वो यूज कर रहे हैं। Hmm. एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का प्रॉब्लम आ गया है, कंटेंट का Hmm. प्रॉब्लम आ गया है, बच्चा कुछ भी देख रहा है। 6 साल के, 8 साल के बच्चों के, उनकी फीड में पॉर्न आ रहा है, उनका कसूर नहीं है, बिकॉज नो बडी इज मॉनिटरिंग, नो बडी इज टीचिंग Hmm. हमें। और सबसे आसान लगता है कि बच्चे को स्क्रीन दे दो। छोटे बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को भी खाना खिलाने के लिए मम्मा स्क्रीन Hannah, लगा के I दे देते हैं, agree. और फिर कहते हैं Yes. मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। Hmm. आई अगेन वंडर एंड आई आस्क फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो, क्यों? बच्चे को तो स्क्रीन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना जब वो पैदा हुआ। Hmm. आपने ही टीवी लगाया, आपने ही फोन दिया, एंड आपको ये शायद नहीं पता कि ब्रेन का जो केमिस्ट्री है, जो वो बच्चों को हुक ऑन कर लेता है, जो उसके इतने सॉलिड कलर्स हैं, जो बच्चे को एडिक्ट कर लेते हैं, और फिर उनके दिमाग में जो डोपामाइन रश होने लगता है एंड ऑल दैट। आपने Hmm. तो एडिक्शन तो आपने खुद लगाया है, जाने अनजाने। आपने पेरेंटिंग आउटसोर्स कर दी स्क्रीन को, कि लो बच्चा Yes. लेके तुम बैठ जाओ। वो खाना नहीं खा रहा था तो आपको कहानियां सुनानी थी, आगे पीछे घूमना था, चिड़िया को, कौवे को, गाय को खिला के खिलाना। ऐसे ही याद करो, अगर आप पायल जी, तो शायद मम्मा ने यही किया Yes. होगा। Yes. Yes. ऐसे ही हम Definitely. लोगों ने ऐसे ही Definitely. देखा, ऐसे ही किया। आपने इजी वे आउट निकाल लिया, एंड आई अंडरस्टैंड Hmm. कि आपके चैलेंज है। हम पहले पहले हम थे जॉइंट फैमिलीज में थे, आज हम न्यूक्लियर Yes. फैमिलीज में हैं, घर में कोई That बड़े too. नहीं है। बट Both देन, parents are working. देखो, जब हम चॉइसेस बनाते ना काम करने की Mhm. बाहर, तो हमें स्मार्ट चॉइसेस भी तो बनानी है ना। I स्मार्ट agree. चॉइसेस भी तो बनानी है ना। अब मैं सिर्फ ये Mhm. तो नहीं कर सकती एज अ मदर कि मैं बाहर तो चली गई हूँ, मैं पैसे कमा के ले आई हूँ, अब वो किस कॉस्ट पे हो रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा ना। I मुझे agree. देखना पड़ेगा। तो Mhm. इसके लिए सबसे पहले तो आपको, और आप काम पे जाते हुए भी, बाकायदा वर्किंग वुमन होते हुए भी, आप अपनी बाउंड्रीज अच्छी लगा सकते हैं। स्क्रीन टाइम के लिए भी मेक द स्क्रीन अ पार्टनर इन द लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड।
बच्चा क्या Yes. देख रहा है वो आप मॉनिटर करिए, और वो जितना भी देख रहा है, 5 मिनट, 10 मिनट, आपने आधा घंटा, 1 घंटा जो भी करा है, वो साथ देखिए, प्रोग्राम चूज करके दीजिए, कहीं कुछ सीख रहा है, कहीं कुछ पढ़ रहा है। ये जो माइंडलेस रील स्क्रॉलिंग हो रही है, ये बड़ा डैमेजिंग है, बड़ा डैमेजिंग है। बच्चे को नहीं पता क्या कंटेंट देखना है, क्या। दूसरा, आप मॉडल करिए। अगर आप ही सारा दिन सवेरे उठते ही फोन लेके व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस एंड गुड गुड आफ्टरनून, गुड Mm-hmm. इवनिंग मैसेज चल रहे हैं, Yes. इधर से उधर मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, आप अगर ये कर रहे हैं और फिर आप बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा ना करे, तो वो कॉपी किसको कर रहा है? वो कॉपी Same आपको चीज कर रहा है। वो अच्छा, लर्न देयर आपसे आर कर रहा है. पेरेंट्स, आई अंडरस्टैंड, समटाइम्स उनको लगता है अब इसकी वजह से हमको भी वापस वही जिंदगी जीनी पड़ेगी। हाँ, जीनी Hmm. पड़ेगी, because your home environment is your creation and Hmm. environment nurtures the child. There are two things जो हम पढ़ते हैं और साइकोलॉजी में सिखाते हैं और बताते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसकी मेकिंग को दो चीजें लगती हैं। एक, वो जेनेटिक्स में क्या लेकर आया है, दूसरा उसके Mm-hmm. एनवायरमेंट से हम उसको क्या दे रहे हैं। दिस इज नेचर, दिस इज नर्चर। तो नर्चरिंग जो है, एनवायरमेंट क्रिएशन आपका है। तो उसमें जो कुछ भी सही नहीं है, वो कौन करेगा? आप ही का रोल है, आप ही को करना है। आपने, यू हैव चोजन टू बी अ पेरेंट, एंड पेरेंट होने की एक जिम्मेदारी है, एक Yes. जिम्मेदारी है। आप, इट्स नॉट जस्ट कि हमारे पास एक बच्चा हमने पैदा किया है, Mm-hmm. उसको बड़ा करना है। एक जिम्मेदार एडल्ट, रिस्पॉन्सिबल, कॉन्फिडेंट, हैप्पी एडल्ट में हमें बड़ा करने तक मदद करना है। तो आप रोल मॉडल करिए, पहले आप खुद अपना स्क्रीन टाइम Mm-hmm. चेक करिए, अपने आपके टेक फ्री जोन्स हो, टेक फ्री टाइम्स हो, रिचुअल्स हो, कि ओके देयर विल बी नो स्क्रीन Mm-hmm. टाइम व्हेन वी आर ऑल ईटिंग और सिटिंग टुगेदर। और कोई कोई भी आपका जो भी अपना घर का एक टाइम है 10 मिनट बैठने का, व्हेन वी आर सिटिंग टुगेदर, मे बी इट इज फॉर 10 मिनट्स, बट वी आर सिटिंग विदाउट फोन्स, लेट्स कीप द डिवाइसेस देयर। एंड ये जो नोटिफिकेशन आते हैं ना, ये डिजाइन है हमारे को Yes. स्टिमुलेट करने के लिए। दूर रखो, Agree. नोटिफिकेशन का पता ही ना चले। एंड देन हैव टाइम्स, देन मॉनिटर कंटेंट। Mm-hmm. क्वालिटी को आप, टाइम से ज्यादा क्वालिटी को देखो। अगर आपका एक टीनेजर है और वो अगर कुछ सीख रहा है सही चीज और अपनी स्किल बिल्ड कर रहा है, तो उसका Mm-hmm. 2 घंटा देखना भी गलत नहीं है। बट अगर Agree. आपका टीनेजर 20 मिनट भी माइंडलेस रील स्क्रॉलिंग कर रहा है, जिसमें वो पोर्न भी Mm-hmm. देख रहा है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देख रहा है, वो लड़कियों का मजाक उड़ाना भी देख रहा है, वो वल्गैरिटी Mm-hmm. भी देख रहा है, तो वो 20 मिनट भी नुकसानदायक है, जबकि वो 2 घंटा भी नुकसानदायक नहीं है। तो आपको ये बैलेंस Yes. तो अपने घर में लाना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, टेक्नोलॉजी का राइट यूसेज पहले आपको समझना है, सीखना है, फिर बच्चे को सिखाना है, एंड इसके लिए करेज चाहिए। Mm-hmm. कहना बहुत आसान है। हम सभी, जैसे मेरे पास इतना क्लाइंट रहता है, 1 to 1 पेरेंट कोचिंग में भी रहते हैं, मेरा भी जो पहला लेवल ऑफ स्ट्रगल होता है ना, वो पेरेंट को ये सेटल करना होता है कि इट्स ऑल यू, इट ऑल स्टार्ट्स विद यू। there are things that you need to modify in your own patterns, day to day patterns. If you think it's, parenting is never about the children, Mm-hmm. parenting is about the parents. Some of them will say कि मैम आप मेरे बच्चे के साथ 2 सेशन लगा लो। Why? The Mm-hmm. child needs nothing. You need different approaches to connect with your child. You need different ways to tell to your child so that your child listens to you, Mm-hmm. listens to you. तो ये बड़ा जरूरी है हमें समझना कि शिफ्ट यहाँ से होगा, यहाँ से। और जब हमारे जो भी हमारी जानकारियां हैं, जानकारियों के लेवल है, आप पढ़ लेते हैं, आपको नॉलेज हो जाती है, थोड़ा और अच्छे से डीप पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा समझ आ जाता है और अच्छे से। पर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड आता है आपका चैलेंज, विच इज एप्लीकेशन। Mm-hmm. 10 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज में से अगर आप एक भी अपनी लाइफ में लगा पाते हैं ना, एप्लीकेशन, दैट इज रियल ट्रू विजडम। बाकी तो किताबों में लिखा कहीं भी मिल जाएगा, आज तो चैट जीपीटी पे पड़ा है, जहां से मर्जी उठा लो। तो लगाने का जो दम है ना, जो करेज है, जो इंटेंशन है, वो Mm-hmm. बड़ा जरूरी है, वो बड़ा जरूरी है। Yes. तो दिस इज हाउ आई सी इट। Yes, I completely agree. In fact, many parents, if we'll talk about them, they struggle to differentiate between discipline and punishment. So, what, according to you, is the difference between the two, and how can they teach discipline in a healthy way to their सी, kids? डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट का जो फोकस है ना, वो बच्चे से रिवेंज लेना है, टू Hmm. मेक द चाइल्ड रियलाइज व्हाट ही हैज डन रॉन्ग। एंड जो डिसिप्लिन का फोकस है, टू हेल्प एंड गाइड योर चाइल्ड टू मेक बेटर चॉइसेस। अब अप्रोच का ही फर्क है, फोकस ही फर्क है। एंड पेरेंट्स दे स्पीक एक्सप्लिसिटली। अगर उसको हम महसूस नहीं कराएंगे तो उसको पता कैसे चलेगा? Mm-hmm. अरे उसको पता चलेगा, उसको पता चला के भी आप क्या कर लेंगे? पता चल गया, मैं गिल्ट में भी चला गया, मैं शेम में भी चला गया, लेकिन मैं तो अगली बार फिर वही गलती करूंगा, क्योंकि आपने मुझे
डिसिप्लिन करते हुए, अगर आप डिसिप्लिन करते तो आप मुझे गाइड करते, आप मुझे कोच करते, आप मुझे बताते कि नेक्स्ट टाइम ये होगा तो आपको क्या करना है। आपने मुझे डांट लिया, गुस्सा कर लिया, पनिश कर लिया, पब्लिक में बेइज्जती कर ली, नानी को फोन कर दिया, दादी को फोन कर दिया, सबको आपने गा दिया, मुझे क्या सिखाया। तो फोकस का फर्क है। जब फोकस आप लेके आते हैं डिसिप्लिन पे, तो आप ये समझते हैं कि माई रोल एज पेरेंट इज टू कोच माई चाइल्ड फॉर लाइफ। बच्चा कुछ भी सीख कर पैदा नहीं हो रहा है, वो एनवायरमेंट से सीखेगा, वो अपने 5 सेंसेस से दुनिया परसीव कर रहा है, सीख रहा है। तो जो देख रहा है, गुस्सा आए तो ताड़ मार दो, कोई कहना ना माने तो चिल्ला दो, तो वो भी तो वही कर रहा है। आप चिल्लाते हैं तो सही है, बच्चा चिल्लाता है तो गलत है। पर आप हटा दो ना बच्चा और बड़ा, आप देखो चिल्लाने का चिल्लाना, बच्चे ने तो सीखा। तो ये छोटे से शिफ्ट है, अगर पेरेंट पकड़ जाए। Punishment is punishing the child, taking revenge for something that I did wrong because I wasn't aware. I'm not talking about at the age जब हमारे बच्चे टीनेजर हो गए। और मेरा फिर ये कहना है, वो टीनेजर हो तो गया, पर उसके प्री टीन्स में, उसके मिडिल स्कूल एजहुड में, उसके टॉडलर एजहुड में जो हमें उसे सिखाना था, अगर हमने नहीं सिखाया, तो गलतियां तो टीनेज क्या, वो तो पूरे एडल्ट लाइफ में भी करेगा। तो हमें सिखाना है ना। तो अप्रोच का फर्क है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट को डिसिप्लिन अप्रोच पे जाना है, जहां उनका फोकस वही है कि मुझे बच्चे को सिखाना है। पेशेंस बहुत चाहिए, और बच्चे को हमें गिल्ट और शेम की तरफ ना ले जाके उसे सिखाना है कि ये जो भी आप काम कर रहे हैं वो क्यों सही नहीं है, और इसके बदले में, इसके अलावा और आप कैसे कर सकते हैं। यू Educating ऑलवेज हैव right. टू लीव, यू ऑलवेज हैव टू लीव दैट। आपने गिलास तोड़ Yes. दिया, है ना, आपने गिलास तोड़ दिया, अब आपको 2 दिन आप खेलने नहीं जाएंगे, ये क्या बात है। आप देखिए, उसे गिलास तोड़ दिया या उससे गिर गया, है ना। अब स्पेशली मैं देखती हूँ छोटे बच्चों के साथ, 6-8 साल वाले बच्चों के साथ बड़ा पेरेंट का स्ट्रगल रहता है। ये हर सामान को छेड़ता है। एक पेरेंट का मेरे साथ ये था कि मैडम इसने ना इतना महंगा हमारा फोन था, उठा के पटक दिया, तोड़ दिया, इसको ये भी नहीं पता ये इतना महंगा था। देखा, नहीं पता। उसको कैसे पता होगा इतना महंगा है। I agree. उसे क्या पता, उसे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर चाहते हैं, इसका पहला मतलब तो ये है कि आपके घर में सामान उठा के पटका जाता है गुस्से में, आप अग्री करिए या ना करिए। आपके घर में नहीं होता तो देखिए बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, उस कंटेंट में कहीं से सीख रहा है। सेकंड थिंग, अब अगर ये हो भी रहा है तो ये उसकी रीच में क्यों था। व्हाई डोंट वी कीप द थिंग्स अवे फ्रॉम चाइल्ड्स रीच, जो उसे नहीं करना है। हम छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा था, हम घर चाइल्ड प्रूफ करते हैं ना, तो देयर आर मेनी थिंग्स जो हमें करनी होती है बच्चों के साथ। तो आप उसको पनिश करके क्या सिखा लेंगे। और अगर आप उसको बताते, आप उसको सिखाते, और बाउंड्री कैसे सेटल नहीं थी कि ये फोन मेरा था और मेरे से बिना पूछे उठा कैसे, बाउंड्री ही सेटल है ना घर में। ये बाउंड्री कितनी जरूरी है कि आप किसी का सामान बिना पूछे नहीं उठाएंगे। देर इज ऑलवेज अ वे टू आस्क। आप परमिशन लेते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप किसी का भी सामान नहीं छू सकते। ये आपका सामान है, ये आपका कोना है, यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है। ये पापा का सामान है, ये मम्मा का ऑफिस का सामान है, ये नहीं उठा सकते आप। तो ये तो और बच्चे सीखते हैं, बहुत प्रेम से सीखते हैं। अभी yesterday इन द स्कूल देयर वाज टीचर्स ट्रेनिंग मीटिंग। तो जैसे टीचर्स के पास, जिनके पास समटाइम्स, अब जैसे टीचर का तो वर्किंग है, बच्चे का छुट्टी है, तो टीचर्स अपने बच्चे ले आते हैं, विच वी अलाउ एट द स्कूल कि आप ले आइए। Okay. अब एक छोटा बच्चा था 3 साल का, अभी वो स्कूल नहीं आता, छोटा ही है, 3 से भी छोटा। तो वो बार बार कमरे में, जहां हम लोग काम कर रहे थे ट्रेनिंग में, वहां अपनी मम्मा के पास आ रहा, और वहां पे हमारा वो लगा हुआ था, पूरा साउंड सिस्टम लगा था, तो उसको छूने लगा। मैंने उससे पूछा कि, मैं कहा आप इसको टच कर रहे, ये आपने तो पूछा ही नहीं है, आप इसको टच कैसे कर सकते हैं। तो हम बिना पूछे तो टच नहीं करते हैं। तो वो कहता है, फिर वो मुझे देख रहा है ऐसे। मैं कहा ओके, आप मुझसे पूछो कि क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ। मैं कहा नहीं, आप इसको टच नहीं कर सकते। तो कहता है मैं इसको टच नहीं कर सकता। मैं नहीं बाबू, आप इसको टच नहीं कर सकते। इसे ओके, और वो अकेले चला गया। Oh, वो that's अकेले चला simple. गया। तो अब देखिए कितना सिंपल है, पर उसको कोई सिखाएगा। अब हम उसको थप्पड़ लगा दें, तुमको पता नहीं है साउंड सिस्टम में, तुमको करंट लग जाएगा, तुम हाथ लगा रहे हो। उसे नहीं पता, अगर पता होता तो लगाता क्या। नहीं पता है ना। तो एवरी सिंगल स्मॉल थिंग यू हैव टू टीच योर चाइल्ड, एंड यू हैव टू टीच as long, as many times, until it becomes a second nature of the child, with patience, with consistency, same boundary, same value, again and again and again, until it gets imprinted here and becomes a second nature. And parenting is a job of patience. Yes. It's a इनफैक्ट job. कई बार बच्चे जो होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, जिस काम के लिए मना किया जाए वो उसे जरूर करेंगे। जरूर ऐसे करें। में ऐसे में क्या करना चाहिए? अगेन देखो, क्यूरोसिटी अगर एजुकेट नहीं होगी ना, अगेन। हाँ, अगर हम क्यूरोसिटी उसकी किल कर देंगे तो बच्चा बड़ा कैसे होगा। हाउ विल ही यस। लर्न एंड डू समथिंग। हमें सिर्फ उसको यही यही तो बताना है
कि आपको देखना है, आप मम्मा से पूछिए। अगर आपके लिए देखना सेफ होगा, मम्मा आपको अपने आप देखने देगी। आपके लिए सेफ नहीं होगा, मम्मा बैठ के आपको दिखाएगी। यू वांट टू सी समथिंग। क्योंकि बच्चे चीजों को, उनका जो सीखने का प्रोसेस है, वो उनका फाइव जो उनके सेंस ऑर्गन्स है, उनको टच करना है। उनकी ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स बन रही हैं, उन्हें हर चीज को टच करना है, क्योंकि एवरी सिंगल थिंग दैट इज अवेलेबल अराउंड द रूम इन द हाउस is a is an article, is an object of curiosity for the child. तो वो तो देखेगा। आप Completely. बताइए, पेशेंस के साथ उसका नाम भी बताइए, उसको बताइए दिस इज बुक, दिस इज पेंसिल, जो भी चीजें हैं, दिस इज मिक्सर, दिस इज वॉशिंग मशीन, दिस इज सोप। और जब आप उसको बताते हैं तो बच्चा सेफ फील करे ना, कि मेरे दिमाग में कोई आता है तो ये बताते हैं। हम चुप करा देते हैं, कितना बोलते हो तुम, मत चुप कराओ, बोलने दो, पूछने दो। दिस इज हाउ दे आर लर्निंग एवरी Learning. सिंगल थिंग, दे विल पॉइंट आउट एंड रादर यू कम फॉरवर्ड एंड टेल, देखो इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो आप उसको वोकैबुलरी दे रहे हो बात करने के लिए, उसके वर्ड्स यहाँ पे जा रहे हैं। दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच पेरेंट्स, इफ दे जस्ट अ लिटिल माइंड शिफ्ट, कि दिस इज माय जॉब, दिस इज माय ड्यूटी, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कुछ भी यहाँ पे फिर बुरा नहीं लगता है। और कभी आपको पेरेंटिंग फिर कभी आपको ना बोझ नहीं लगती है, नेवर। You enjoy it. To me, जी. personally, parenting has been the one of the most beautiful, I'll say, fulfilling experiences. And the same, by the same logic, बच्चे, students, I Yes. love them. क्योंकि वो लाइफ हमारे सामने शेप हो रही है। वो इतने से आते हैं 3 साल साल, और जब वो जाते हैं 18 साल के बच्चे होके, यंग एडल्ट्स होके, हमारे लिए बड़ा फुलफिलिंग होता है, ये बहुत अच्छा लगता है। Proud moment. या As a प्राउड मोमेंट, teacher, as an या एज अ educator, टीचर, as a एज पेरेंट। parent. या डेफिनेटली। अंजू जी, अगर कोई बच्चा जो है वो बार-बार बाउंड्रीज़ जो क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे में पेरेंट्स को हाउ शुड पेरेंट्स स्टे काम येट फर्म? अगेन सारी चीजें वहीं आके रुकेंगी। बेसिक पे अगर आप जाके देखेंगे ना, मेरा जो बेसिक पेरेंटिंग का है, हुँ, आई हुँ। स्पेसिफिकली वर्क ऑन ओनली 3 वैल्यूज। यहाँ पे भी अगर एक बच्चा बार बार बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, बच्चा बार बार आपको किसी चीज के लिए आप इरिटेट हो रहे हैं, हुँ, हुँ। लर्न टू रेगुलेट योर सेल्फ फर्स्ट। ओके। बच्चा तो जो कर रहा है वो बच्चा कर रहा हुँ, है, हुँ। आपकी चॉइसेस, आपकी अपनी, आपका रिस्पॉन्स, रिएक्शन आपकी चॉइसेस है, आपका सेल्फ डिसीजन है। तो आप सबसे पहले तो खुद को रेगुलेट करिए, और 3 ही वैल्यूज हैं जिसपे काम करना है। रेगुलेट योर सेल्फ, योर इमोशंस, चूज टू स्पीक कामली। कितना भी वो गुस्सा कर रहा है, तो जो भी बदमाशी कर रहा है, बार बार बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तो बच्चा ही ना। एंड देन नहीं हो रहा बताने से, आप नेचुरल कॉन्सिक्वेंस लगा दीजिए ना, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, नेचुरल हुँ, कॉन्सिक्वेंस। हुँ। आपने बोला गिलास टूट गया, 2 दिन खेलने नहीं जाओगे, दिस इज नीदर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, नॉट लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। यस। पहले आप ये चेक करिए कि उससे गिलास टूट गया या उसने तोड़ा। टूट हुँ, गया हुँ। तो आपको आगे से उसको, अभी उसकी उम्र अगर कांच का ग्लास हैंडल करने की नहीं है, तो आप उसको स्टील तो के नहीं बर्तनों देना में है। करने दीजिए, फाइबर के बर्तनों में करने दीजिए, हुँ, हुँ, अनब्रेकेबल हुँ। में करने दीजिए। और अगर उसने जानबूझ के तोड़ा है, मान लीजिए उसने टॉय तोड़ा है, फाइन, आपको वो टॉय नया नहीं लाके देना, और उसके बाकी भी टॉयज की बाउंड्री उठा के, ओके, हुँ, हुँ। व्हेन यू आर रेडी टू हैंडल योर टॉयज प्रॉपर्ली, जब आप अपने टॉयज से प्रॉपर तरीके से खेलने के लिए तैयार हो, मम्मा से बोलना, ये रखिए टॉयज की बास्केट, उठा के हुँ, ऊपर हुँ। रखिए। दैट इज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। आप तोड़ते हैं, आप फेंकते हैं, आप खराब करते हैं, आपको खेलने को नहीं मिलेगा। और अब कहना क्या है, हम क्या कहते हैं, अगर तुमने तोड़ा तो हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे। चैलेंज। आप बोलिए, जब आप अपने टॉयज को प्यार से, तरीके से हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, सीख जाएँगे। आप मम्मा से मांग लीजिएगा। तो मैंने फोकस क्या किया है, उसको मैसेज क्या दिया है, टॉयज को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है, उसका केयर करना है, किताबें हैं, कॉपियां हैं, स्टेशनरी, एनीथिंग। और जब आप तैयार हो जाइए, मम्मा से मांग लीजिए। देने तो मुझे टॉयज उसी को है ना, उसी के है ना। तो ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस भी है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस भी है। अब जैसे आपके बच्चे जो होमवर्क नहीं करते, करके जाते हैं, ये भी एक बाउंड्री है। मान लीजिए कि एक बच्चा होमवर्क करता ही नहीं, मम्मी रोज कह रही है, और वो 2 कर लेगा, 1 नहीं करेगा, 1 कर लेगा, 2 नहीं करेगा, कुछ ना कुछ रोज का प्रॉब्लम है, उसे नहीं करना होमवर्क टाइम से। और बच्चा आपका 4th क्लास में है, 6th क्लास में है, तो उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस भी तो है ना। जिस दिन वो होमवर्क नहीं करके जाएगा, टीचर क्लास में पूछेगी ना सबके सामने, तो उसको इंसल्ट मत महसूस करिए ना, कि आपने सबके सामने मेरे बच्चे को क्यों कहा। Let the teacher ask. Let the child face the real world consequence. You हुँ, will be हुँ। asked in front of everybody. And if you feel shameful, please go with your homework done. लाइफ को होने दीजिए, लेट द हुँ, लाइफ हुँ। हैपन। और हम क्या करते हैं, हम पीछे से फोन करते हैं, झूठ वाला फोन करते हैं, कि मैम आज इसने होमवर्क नहीं किया, हम बाहर गए हुए थे। मैडम,
कल हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, हम इसने ना होमवर्क नहीं किया, आप इसको कुछ कहना नहीं। हम्म। तो हम उसको क्या बता रहे हैं, मैं तो रोज आपके सिर पे यही कहने वाला हूँ, रोज नाचने वाला हूँ, मुझे होमवर्क नहीं करना, आप फोन कर देना मेरे मैडम को। तो ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है ना, आएगा, टीचर पूछेगी, पूछने दीजिए। और हमारे जैसे हम लोग अपने स्कूल में क्या करते हैं पायल जी, हम पेरेंट्स को ये बता देते हैं, जहां आप ऐसे पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बेटा वैसे मान लो मैंने क्लास का राउंड ना लगाना उस दिन, पर जिस दिन आपके बच्चे ने, कोई बच्चे होते हैं जिनके हम्म। चैलेंजेस होते हैं, तो आपने मुझे फोन कर देना है कि मैडम इसने आज फिर ये काम नहीं किया हुआ। मैं ओके। उस दिन राउंड पे जाऊंगी ना, स्पेशली जाऊंगी, उसके हम्म। लिए तो रैंडम है, पर मुझे पता है मैं पर्पस ड्रिवन जा रही हूँ, और मैं उस दिन चेक करूंगी, उसका जरूर चेक करके आऊंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम पीछे से यस, टीम बना लेते हैं। फर्क है दोनों में, राइट राइट। फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस। हम हम्म। टीम बना लेते हैं। वैसे बच्चा सोच रहा है, मान लीजिए उसका नहीं भी चेक हुआ, एक बार दो बार, उसे लगता है आप तो कहती हो, टीचर तो कुछ कहती ही नहीं है, हम्म। पर आपने मुझे फोन कर दिया है, मैं आपके बच्चे की इंग्लिश टीचर हूँ, आपने मुझे बता दिया है, मेरा आज होमवर्क चेक करने का प्लान नहीं था, डे नहीं था, शेड्यूल में नहीं था, मैं पर आज आउट ऑफ द शेड्यूल पूछ लूंगी। अब उसको पता है, यार ये तो मैडम तो पूछ लिया, सबके सामने पूछ लिया। हम्म। आप टीम कर लेते हैं। देर आर वेज जहां आप बच्चे को सही गाइड करने के लिए, आप हम्म। कभी भी गिव इन नहीं करते हैं, और आप उसके साथ नहीं खड़े जाते, तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस लगाइए, फर्म रहिए, बाउंड्री के साथ काम रहिए, कूल रहिए, गिव इन मत करिए, और नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जरूर लगाए, जरूर लगाए। हम्म। बट असली में ऐसे एग्जैक्ट। पेरेंट्स के आपको कॉल करके बताते हैं? जनरली मुझे लगता है वो पहली कैटेगरी में पेरेंट्स ज्यादा फॉल करते हैं, जो फोन करके आपको बोलेंगे कि हम थे नहीं, वेडिंग पे जाना था इसलिए नहीं हुआ। पहली सेकंड कैटेगरी कैटेगरी में में भी आते हैं पेरेंट्स, आते, ऐसा होते हैं? अगेन मैंने बोला ना, हम अपने स्कूल में पेरेंट एजुकेशन बहुत करते हैं, तो हमारे ओके अपने स्कूल के जो ओके, दिस पेरेंट इज हैं द उसके रीजन। लिए वो समझ गए यस हैं। यस। जैसे अब मान लो देर आर पेरेंट्स, दो हम्म। will come, वो टाइम लेंगे, वो आएंगे, बैठेंगे, चैलेंज बताएंगे, तो वहां फिर हम उनको ये हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जिस दिन इसने नहीं किया होगा, उस दिन तो आपने मुझे जरूरी बता देना। हम्म। इसकी इंग्लिश टीचर है मान लो, जो भी है उसको जरूर बता देना, यस मैथ्स यस वाले टीचर यस। है, जरूर बता देना। हम उस दिन जरूर पूछेंगे, 6 बच्चों से पूछेंगे, बीच में इससे भी पूछ लेंगे। हम्म। तो ना तो बच्चे को हम टारगेट कर रहे हैं, हम तो जनरल क्लास के साथ प्रोसीजर लगा रहे हैं। अग्री। तो जो पेरेंट्स वेल मीनिंग होते हैं, और जो देखो मैंने हम्म। ये भी देखा है पायल, इतने टाइम में इतने सात सात लोगों के साथ, मतलब 7 लोगों के साथ काम करते करते वक्त हो गया। देर आर टू टाइप्स ऑफ पेरेंट्स, जो आते हैं, जो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का रोना रोते हैं, चैलेंजेस के बारे में बताते हैं, ये बट उनको कुछ भी लगाना नहीं। हम्म। कोई भी उनको आप जो उनको स्ट्रेटेजी दें, टिप दें, इनसाइट दें, कोई करेक्टिव मेजर दें, उन्हें लगाना नहीं, फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो नहीं करना। हम्म। तो अगर आप ही तैयार नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत कोई बदलाव आपके घर में ला नहीं सकती है, यस। तो हमारे भी लिमिटेशन से हम समझ जाते हैं। बट देर आर पेरेंट्स जो हमारे साथ सेशंस आफ्टर सेशंस आफ्टर सेशंस, अब जो हमारे पास 6-8 साल से पढ़ रहे हैं, और जो हमारे वर्किंग स्टाइल को जानते हैं, जो जानते हैं ये लोग कितने वेल मीनिंग लोग हैं बच्चों के लिए, कितना पेरेंट्स एजुकेशन में साथ में लगते हैं, जो इतना सा भी शिफ्ट लाते हैं ना, उनको अपने घरों में बच्चों में बदलाव हम्म। दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि देन वी बिकम द पार्ट ऑफ द, वी आर ऑन द सेम टीम। हमारा और आपका उद्देश्य एक ही है ना, कि आपके बच्चे की वैल्यू सेटल हो, सही बात है। तो आपको साथ तो देना पड़ेगा। आप उसका साथ कैसे दे देती हो? मत दो ना, फोन मत करो, हम्म। मम्मी फोन कर दो, मम्मी एक नोट लिख दो, नहीं, नो। यस। डोंट राइट अ नोट, लेट द चाइल्ड हैव द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। और ये आपको पता है कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हो रहा है, तभी कोई भी सीखेंगे वो। स्कूल बच्चे को मार पीट नहीं रहा है, पर पूछेंगे तो सही। और अगर हम्म। तुम्हें 6 लोग के सामने, 10 लोग के सामने पूछे जाने में बुरा लगता है, तो फिर तुम काम करके आओ, दैट्स सिंपल, यस। दैट्स वेरी सिंपल। सो थोड़ा सा अंजू जी। पेशेंस को परसेवरेंस के साथ, यस। कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे। In fact, it is required. So, what are some of the daily practices that you personally maybe followed because your kids are now grown up to stay mindful about your parenting, or सी you would want to या suggest? अ गुड क्वेश्चन, शायद तब मैं जानती नहीं थी, बट जब मैं Okay. रिफ्लेक्शन पे आज जाती हूँ, तो व्हाट वी हैड बीन ऑलवेज डूइंग, me Mm-hmm. and my husband both, as parents, we had very beautiful connection rituals with the children, like कि हमें उनके साथ खेलना रोज है। When I say connection, तो how do you build connection? बच्चे के लिए कनेक्शन का मतलब when you are involved in the child's life, Time. when you know their word, when Mm-hmm. you are available with them, when you are at their level, तो play is the most beautiful way of connecting with your children. हमें तब समझ नहीं थी, हमसे अनजाने में ही अच्छा हुआ है, और उसका हमें फायदा भी मिल रहा है। Yes. बच्चों के साथ रोज का खेलना, पापा Mm-hmm. का तो नियम ही था कि बच्चों के साथ 1 घंटा पार्क में जाना है, खेलना है, भागना है। बड़े हो गए तो अब जैसे आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बोर्ड गेम्स भी खेलनी है आपको, बच्चों के साथ रिडल्स हैं, पजल्स हैं, एक्टिविटीज हैं, आपको Mm-hmm. करने हैं।
तो ये कर ही रहे होते थे पापा और बच्चे। तो पापा की तरफ से तो ये बहुत अच्छा था। एंड इवन आई हैव ऑलवेज लव टू बी अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन। मुझे स्टोरी सुनाना बहुत पसंद था बच्चों को। ओके। उसका मुझे फायदा, मुझे कनेक्शन बनाने का तो फायदा नहीं पता था, वो मुझे मिला। आज तो मैं ये बात सिखाती हूँ, यू कॉन्शियसली टेल। तो हमने चूंकि हमारी दादी को देखा था, हमें बहुत स्टोरी सुनाते थे, तो वो प्रैक्टिस एज अ पेरेंट मेरे साथ आ गई थी। तो मैं बहुत स्टोरी सुनाती थी, तो उससे कनेक्शन तो बनता ही था। जो एक और फायदा आता है वो ये आता है कि बच्चे की लैंग्वेज एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे आते हैं। बच्चे की वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है, बच्चे के एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे आते हैं, बच्चे की इमेजिनेशन बड़े अच्छे आते हैं। एंड आई एम प्राउड टू शेयर कि दोनों बच्चों का लैंग्वेज पे बचपन से इतना सुंदर कमांड था, क्योंकि उनकी मम्मा वेरी सारा दिन उनके नाइस। साथ बात ही करती रहती थी। कभी गाने गा रही है, कभी राइम्स गा रही है, कभी उनके साथ भजन गा रही है, कभी उनको कहानी सुना रही है। तो आई केप्ट टॉकिंग, इंटरेक्टिंग अ लॉट। एंड एक जो चीज हम लोगों ने दोनों हस्बैंड वाइफ ने बड़ा माइंडफुली किया है, वो आज भी प्रैक्टिस है। बच्चे अब आते हैं, जब भी 10 दिन के लिए आए, महीने के लिए आए, जितने भी टाइम के लिए बच्चे आए, डिनर टाइम हमारा, वी आर साथ ऑल होते हैं। टुगेदर। यस। आज मुझे हम कभी भी वापस जाके देखते हैं, हमें याद नहीं हम ये कब से कर रहे हैं, पर हमेशा से। और डिनर टाइम पे इट्स नॉट कि डिनर, हमारा कई बार खाना खत्म हो जाता है और हम वहाँ एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठे होते हैं, दो दो घंटा बैठे होते हैं। दैट्स द टाइम ऑफ द एंटायर डे। हर बंदा व्हेन वी क्या सिट हुआ? टुगेदर, हाँ वी टॉक। और यस। कई बार लिटरली हमें डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा हो जाता है, फिर हम उठते हैं और अपनी डिशेस उठाते हैं और किचन में सिंक में रखते हैं। क्योंकि उस वक्त पे डे एंड का टाइम है, मैं अपना बता रही हूँ, तुम अपना बता रहे हो, पापा अपना बता रहे हैं। तो फैमिली डिनर टाइम। और आई ऑलवेज बिलीव द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। यस। कि बच्चे दे लुक फॉरवर्ड टू, आज भी वो आते हैं, अब उनके वर्क का भी वर्क फ्रॉम होम होता है, शेड्यूल्स अलग होते हैं, पर उन्हें ये पता होता है, चाहे वो अकोमोडेट कर लेंगे। अब जैसे हम बड़े हो गए हैं, अब हम 2 मील्स अ डे पे चले जाते हैं, हमारा 3 मील्स वाला खत्म हो गया है। तो बच्चों को ये पता है कि मम्मी पापा का डिनर 5:30-6 बजे हो जाता है। तो वो हमारे साथ वाला जरूर लेंगे, उसके बाद उनकी जरूरत है रात को तो तुम दोबारा खा लो 11 बजे, नहीं तो कोई बात नहीं, तुमने देखना है। पर वो एक मील दे विल एंश्योर, बिकॉज दे वेट फॉर दैट टाइम। दैट यस। इज आवर टाइम एज फैमिली, दैट इज आवर अस टाइम। अस। यस। तो ये हमने माइंडफुली किया है और उसका हमें बहुत फायदा है। बच्चे यस। कनेक्टेड फील करते हैं, उनको एक स्पेस होता है, वो अपनी बातें ओपन अप करते होते हैं। हैं बेसिकली। या अच्छा, यस। और कई बार ना दे फील पेरेंट्स मुझसे ये कंफर्टेबल। भी, हाँ पेरेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं, बच्चों से बात क्या करें, अब टीनेजर से बात क्या करें। एंड बिलीव मी, वो टाइम हमारे पास भी आया था, हमें समझ नहीं आता कि इनसे बात क्या करें। अब खाना पीना पढ़ाई तो नॉर्मल सब चल रहा है भगवान की दया से, पर अब कनेक्शन चाहिए। तो हमने अपने बच्चों को रीडिंग की भी आदत डाली थी, और अच्छे अच्छे दो, बोथ ऑफ देम आर गुड रीडर्स। हम भी खूब पढ़ती हूँ मैं भी। तो फिर हमने क्या किया, इनकी एज की जो किताबें ये पढ़ते थे या कोई पर्टिकुलर सीरियल जो ये देखते थे ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ इनके कॉलेज जाने तक भी हम कॉन्शियसली वो देखते थे और पढ़ते थे, सो दैट वी गेट अ कॉन्टेक्स्ट। अब हम उस पर कॉमन बात करें। टॉपिक। कॉमन कॉमन टॉपिक टॉपिक। ढूंढ रहे हैं। वेरी नाइस। आपको बच्चों के साथ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, तो आज चैलेंजेस डिफरेंट है, पर चैलेंजेस बच्चों के साथ आप सोचते हैं कि कभी खत्म हो जाएंगे लाइफ में, कभी भी नहीं होंगे। कोई ना कोई, कभी उनकी अब कोई नीड होगी, मम्मा ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है। तो चैलेंज का लेवल बदल जाता है, पर बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं ना, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई सी, उनको अपने प्रॉब्लम्स के, चैलेंजेस के सॉल्यूशंस खुद डिजाइन करने आते हैं हमसे बेहतर। बट वो बात करते हैं, हमें लूप में लेते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन की फीलिंग जो आती है, यस। यस। कनेक्शन की फीलिंग आती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों के साथ बैठें, सुने, बात करें। That's a very beautiful concept that you talked about. I mean, going a step down या and बहुत then जरूरी है, बहुत जरूरी saying as per है। what is their interest area अच्छा, अब basically. देखो मैं आपको बताती हूँ, लाइक जैसे हमारी जो जनरेशन है, हम हमारे टाइम पे कभी स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं थे, Yes. राइट। हम बड़े हुए, ऐसी कोई चीजें नहीं थी। हमारे बच्चों ने हमें स्टैंड अप कॉमेडियंस इंट्रोड्यूस किए हैं। अब हम अपनी चॉइस के देखते हैं, लेकिन वो भी देखते हैं जो एक दो वो देखते हैं। फिर वो हमारा कभी कभी अपने साथ साथ शो बुक कराते हैं, मम्मी चलेंगे आज देख कर आएंगे। तो ठीक है, कुछ डिफरेंट अगर वो हमें लेके जाते हैं तो हम करने को भी तैयार रहते हैं। एक टाइम था हम उन्हें चीजें इंट्रोड्यूस करते थे, Yes. और अब वो अब ना करते हैं। गेम गेम हैज रिवर्स। हमारे घर में तो रिवर्स हो गई है, बच्चे बड़े हैं दोनों एडल्ट, अब वो हमें चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं। मम्मा ये ट्राई करिए, मम्मा ये करेंगे, मम्मा ये वाला मूवी देखिए, मम्मा ये वाला किताब पढ़िए, मम्मा यहाँ घूमने जाएंगे, पापा यहाँ जाएंगे। तो अब वो हमें इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हम लोग ओपन टू न्यू थिंग्स। तुम लाओ, लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा कोई बात। पर एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट तो आया ना, Yes. कॉमन कॉन्टेक्स्ट तो आया ना। इनफैक्ट ये चीज भी उन्होंने आपको देखकर ही लर्न की। हाँ, लाइक जो चीज मैं वही कह रही हूँ, स्ट्रेस कैसे हमारे घर हैंडल में अब करना है, रोल गुस्सा रिवर्सल हो कैसे चुका है। हैंडल कर। हाँ, यस। रोल रिवर्सल हो चुका है। पहले हम उनके मम्मी पापा थे,
एक्चुअली अब वो हमारे मम्मी पापा हो चुके हैं। दैट्स गुड। या सो अंजू जी, आपकी सिंगल पेरेंट्स या वर्किंग पेरेंट्स को लेके हु आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड थिन, उनको लेके क्या एडवाइस रहेगी? देखो, सिंगल पेरेंट होना और जो वर्किंग पेरेंट है ना, इन हुँ, दोनों हुँ। के पास जो है ना, टाइम आधा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल है, डबल है। और गिल्ट 4 गुना है ना, ये ट्रू है। व्हेन आई एम एज अ वर्किंग पेरेंट, तो मुझे ये गिल्ट तो अंदर से खा रहा है कि मैं अपने बच्चे के लिए हुँ, हुँ, अवेलेबल नहीं हुँ। हूँ। बट ये जो वर्किंग पेरेंट्स हैं या जो सिंगल पेरेंट्स हैं, इनसे मेरा सिर्फ ये कहना है, डू नॉट फील गिल्ट, हुँ, डू नॉट थिंक कि मैं अपने बच्चे की लाइफ में सुबह से शाम तक प्रेजेंट नहीं हूँ। चूज टू बी प्रेजेंट, इवन इफ इट इज फॉर 10 to 15 minutes, 10 to हुँ, 30 हुँ, minutes a day, but those 10 to 30 minutes must be totally undivided attention for your child, without screens, without multitasking, just you and your child, and connecting to the child, going into the world, knowing what is happening, what they are doing, what they are learning, and हुँ, choosing at least one or two connecting rituals per day. हुँ, हुँ। एक तो यही हो गया आपका, sit साथ with में them डिनर 10 to करना। 20 minutes, 30 minutes, listen to them, talk to them, share with them. हुँ, हुँ, एंड उसके अलावा वीकली कोई रिचुअल बना लीजिए कि भाई वीकली हमने, आपका जैसे भी आप करते हैं कि हमने मंदिर जरूर जाना है, हमने गुरुद्वारे जरूर जाना है, हमने लाइब्रेरी जरूर जाना है ना, हमने कोई कम्युनिटी है जहाँ पे हम सेवा के लिए जाते हैं, हमें जरूर हुँ, जाना है। हुँ, हुँ। तो वो बना लीजिए जिसको कि बच्चा लुक फॉरवर्ड करे कि ये वीकली संडे को हम जाते हैं, एक्टिविटी है। हुँ, हमें जाना है, मम्मी के साथ जाना है, पापा के साथ जाना है। ये कनेक्टिंग रिचुअल। हुँ, हुँ, और जितना भी टाइम आप अवेलेबल है, उसको आप क्वालिटी टाइम दीजिए, गिल्ट में मत जाइए। एंड ये भी बहुत जरूरी है, इवन इट्स नॉट ओनली फॉर वर्किंग पेरेंट, इट इज फॉर ऑल द पेरेंट्स। आप ये मत सोचिए कि आप ऑल टाइम परफेक्ट पेरेंटिंग कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपसे भी छूटेंगी चीजें, हुँ, हुँ, होगा, आप चिल्ला भी देंगे, पर चिल्लाने के बाद आप रिपेयर कितनी जल्दी करते हैं, आप जेन्युइन सॉरी कितनी जल्दी बोलते हैं, दैट ऑल इज इम्पोर्टेंट। हुँ, हुँ, एंड कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं है। इफ यू आर चूजिंग लाइक वी से माइंडफुल पेरेंटिंग, तो उनको भी तो माइंडफुल पेरेंटिंग ही करनी है ना। तो माइंडफुल पेरेंटिंग का सीधा सा मतलब है नोटिसिंग, ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग, मेकिंग चेंज, choosing to evolve with the children. This is all the mindful conscious parenting is. You never know everything perfect, you are never at all the time in the best of your mental state, but जब भी आपसे कभी ऐसे हो जाए, बस रिपेयर जेन्युइन कर लीजिए और क्विकली कर लीजिए, ब्लेम गेम में मत जाइए। तू हुँ, मुझे हुँ, गुस्सा दिला देता है, नो, आपके गुस्से आपकी वजह से आते हैं। अ चाइल्ड इज जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग। आपका गुस्सा आपको इसलिए आता है क्योंकि आपको इमोशन रेगुलेट करना आता नहीं। हुँ, वो हुँ। हमें किसी ने बड़े होते स्किल सिखाया ही नहीं। हमारे लिए गुस्से का एक ही मतलब है, बस मुंह खोलो और बोल दनादन देना। चालू हो जाओ, सामान उठाओ पटको, और एक्सट्रीम केसेस में मारो, पिटाई करो। हुँ, हुँ, आप सिर्फ अवेलेबल होइए, जितना भी टाइम आपके पास है आप उनको दीजिए अनडिवाइडेड अटेंशन। 1 और 2 फैमिली रिचुअल कनेक्ट अपनी बनाइए, जरूर बनाइए, और बिल्कुल भी गिल्ट में मत जाइए। बी अवेलेबल माइंडफुली एंड कनेक्ट व्हेन एवर यू फॉल, कनेक्ट इमीडिएट। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर पाए। एंड यस, हुँ, टाइम अगर हुँ, कम है तो छोटा सा टिप ऐड कर लीजिए उसमें। टाइम कम है तो आप प्रायोरिटी सेट कर लीजिए ना। देयर कम्स अ टाइम इन लाइफ जब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होती है। और अगर मैं अपने को देखती हूँ तो मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी घर और स्कूल के अलावा कुछ और किया ही। अब मेरे पास टाइम है, नाउ आई कैन गो टू 10 places, बट हुँ, देयर वाज अ हुँ, टाइम जब मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी वो स्कूल में है, वो 12वीं तक अभी पढ़ रहे हैं, तो कहाँ टाइम है। मैं अगर 4 बजे 5 बजे स्कूल से ही आ रही हूँ, उसके बाद अब मैं सोशलाइजेशन पे भी जाऊंगी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। So I chose my priorities. Somewhere where I could skip going, I would just हुँ, make a हुँ। call. I'll be genuinely making a call that I wanted to be there, but I'm not बट आई coming. कांट। Excuse me for यस। that. And whenever I had the time, I went and made up for those lost हुँ, times when I हुँ, couldn't nurture the connections. There was a time, मुझे याद है, मैंने शायद 5 साल लगातार अपने घर नहीं गया। इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा पढ़ा था, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारियां थी, घर में बुजुर्ग पेरेंट्स थे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं हुँ, कैसे हुँ, चली जाऊं, कैसे चली जाऊं मैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें मोमेंट टू मोमेंट पे अगर प्रायोरिटी सेट करनी आती है, मुझे सोशल फंक्शन में जाना और मेरा बच्चा देखना है, तो मैं तो बच्चा ही। एग्री। कहीं पे दोनों का जाना जरूरी होता है, अगर आप वर्किंग कपल हैं तो एक चले जाओ ना, क्यों दोनों को जाना, हुँ, हुँ, हुँ। एक चले जाओ। एक किड्स हाँ, के तो साथ रह आपको ये सकते हैं। प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। एवरी सिंगल सोशल फंक्शन, मेरे पर्सनल मेरा ओपिनियन है, एवरी सिंगल सोशल फंक्शन इज नॉट टू बी अटेंडेड। हुँ, हुँ। ओके, इट्स ओके, आएगा वो टाइम भी आएगा जब हम कर लेंगे। यस।
फिर अभी आप अभी प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं, भाई भाई बहन एक दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के यहाँ तो हम जरूर जाएंगे क्योंकि हम इंसान भी हैं, पर हम यस हर रैंडम पे सोशलाइज अभी नहीं करना है। जाएंगे। हाँ, और आई एम नॉट अग्री। सेइंग कि सोशलाइजेशन गलत है, आई एम सेइंग अगर टाइम का शॉर्टेज है तो फिर कहीं से तो टाइम प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। निकालना ही पड़ेगा, कहीं से तो टाइम अग्री। निकालना पड़ेगा। अंजू जी एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। जी जो भी बिल्कुल चीज आपके पूछिए। माइंड में फर्स्ट आएगी उसका या आंसर दीजिएगा। वन पेरेंटिंग मिथ यू वुड लाइक टू बस्ट। ओके, पेरेंट्स को जो ये लगता है ना कि बच्चों के साथ वो स्ट्रिक्ट होकर उन्हें डिसिप्लिन कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। उनको बताइए कनेक्शन विद फर्मनेस, डिसिप्लिन यस। स्टैब्लिश कर दो। एंड वन हैबिट एवरी पेरेंट शुड अडॉप्ट टुडे। 10 to 30 minutes of undivided attention with each child at home। अगर आपके दो बच्चे हैं तो दोनों के साथ अलग अलग ओके। 10 to 30 minutes of undivided attention। एंड वन थिंग यू विश schools would teach kids about emotions. Schools can do a lot of things. School can work on teaching the children names of the emotions so that children can name what they are feeling, naming and expressing and regulated expression of emotions. We do that in life skill classes. In fact, research says naming the emotion cut it their intensity by 50%. Yeah. Naming the emotion actually is taming the emotion. Yes, definitely. Half the emotion is already gone when you are able to say Yes, that I'm not feeling that's happy. beautiful. Yes. And the most underrated parenting skill no one talks about. Listening without judgment, listening without intervention to the children. Yes. And the most common thing parents tend to overthink. The children's future success. You please focus on Interesting. now. Future will take care of itself. Focus on now. Every single thing happening right now will take to the right future as well. And what's harder, raising toddlers or coaching parents? Coaching parents, of course. It टॉडलर is. तो प्लेन स्लेट है ना, मैं लिख सकती हूँ मेरे हिसाब से। यहाँ जो इतना सारा ऑलरेडी लिखा और कंडीशन है ना, पहले इरेज करना पड़ेगा। अनट्रेन करना, Yes. इरेज करना, नए पैटर्न्स लिखना, Unlearn. अनलर्न, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। तो ये अनलर्न Yes. कराना द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। टॉडलर को तो सिखाना बहुत आसान है। मैंने अभी That's आपको great. एग्जांपल बताया था। I'll Yes, train the yes, toddler. definitely. Yes. So, Anju ji, here comes my last question of this podcast. What message would you like to give to the parents who are listening to this? Take care of yourself first. If you are not taking care of yourself first, you are not filling your emotional cup, you will never be able to take care of your children. In your daily routine, have some time for yourself, some silence, whatever you love to do, reading, cooking, gardening, meditation, walking. Find some time for yourself, nurture yourself, and that with nurtured state of mind, nurture your children. You will Nurture it. always find yourself capable. Most of the times parents are drained because Yes. and parenting is a tough job. 24 into 7, always. It's a tough job, but if you are already fulfilled, you will be doing the right things. So take care of yourself, do something, devote some time daily to something that you love doing. Loved. That's And a finally, beautiful I'll wrap it message. up. Try not to control your children, try to be their life coach. Controlling will make the things happen just on the moment. Coaching will train them to make the right decisions for the life. And your job as a parent is not to control your children and get the things done right. Your job as a parent is to teach them to make right choices, to take right decisions, own their decisions, and be ready for the life. That's what your job Yes, as a parent indeed. is. That's a beautiful, beautiful message, Anjali. And thank you so much once again for joining us today, taking the time out for this Thank you podcast. so much, It Payal, for was having me really over here. lovely interacting with you. And we talked about so many things, the real life challenges that parents really face about the screen time, how to tame it, or everything about parenting. Thank you so much for your time today. Thank you, Payal. Thank you so much. Thank you for having me over here. And yes, let this message go to all parents. Yes, parenting is the most fulfilling. Though one of the toughest jobs, for we have not been prepared, yet the most fulfilling. A little mind shift is required. Blessings to all the parents. Blessings to all of us. Thank you so much. God Thank bless you so us. much, God Anjali. bless us. Thank you so much. Have a great day Bye-bye. ahead.